Hello everyone and welcome to PendulumEdu. Good morning and thank you for joining in, learners. Quickly comment and let me know that yes, you guys have joined me right here, and we will get started with session today. English for SSC, that's what we're targeting, and we are very close to complete the entire concepts, like all the concepts and practice sets, recall doses, whether it is for grammar or vocabulary or reading ability. I have covered every bit with you. So since I've covered every bit with you, so I just wish to let you know that reading comprehension, and we are left with para jumble. That's it. Nothing else is left. Reading comprehension we've started today. This is part 1 that I'm doing, and another part I will be doing on Monday. All right, on Monday we'll be having the session for part 2, and then we will just be left with para jumble. So we'll be doing that in the upcoming week. So those who have joined me can comment and remember, let me know that you have joined me. Today I'm going to give you a few tips of how to attempt or approach this set of question or this type of question, that is reading comprehension. Number 1. Number 2, I will have a few questions for you. Only a few today, because in part 2, that is on Monday, we will be having ample of practice questions on Monday for you. तो मंडे को हम solely सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे और सिर्फ वो ही प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस ऑन मंडे. टुडे मैं आपको अप्रोच बताऊंगी और बस हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, ताकि हम इस अप्रोच को अप्लाई करना सीख जाएं. सी इन इंग्लिश it doesn't make difference, because आपको रूल्स रटने नहीं है, ठीक है, but you should know the application of all the rules. What? You should be aware of the application. Okay? अभिषेक कह रहे हैं 11:15 से कॉलेज का ऑनलाइन क्लास है. अभिषेक by 11 we will try to wrap it up. Okay? 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे इसको wrap up करने की. Don't worry. Alright अभिषेक, चलें. So you have to, or you should know the application of the rules. Okay, you should know the application. So that's what we will be discussing. चलो फटाफट से जो लोग join कर चुके हैं, they can quickly share the session with their friends and known ones, so that those who need this, they can quickly join us in. All right. All right, Abhishek, you're welcome. So let's begin. Now, it's very basic to know the reading ability. What is reading ability? Okay, if this paragraph, there's a short paragraph written right in front of you. Reading ability doesn't mean that in how much time you read this and you let me know. That's not the case. It's not about time. Reading ability is not about time. It is about reading in one go, reading and comprehending. मतलब अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा and in one reading, in one instant, you are able to explain, or you are able to let me know that what you read in this paragraph, that is what reading ability is. ठीक है, रीडिंग एबिलिटी समय से रिलेटेड नहीं है. रीडिंग एबिलिटी क्या होता है कि यदि आप कोई चीज एक बार पढ़ते हैं, देन आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, आप उसे समझ लेते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं. दैट इज व्हाट रीडिंग एबिलिटी इज. गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो भाई रीडिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करना है. आई हैड ऑलरेडी कोर्स शुरू करने के फर्स्ट सेशन में ही मैंने आपको एक सेशन दिया था इंट्रोडक्टरी, जहां मैंने कहा था दैट रीडिंग एबिलिटी कैन बी एनहांस्ड इफ यू गो फॉर 15 minutes reading every day, not more than that. Read anything, guys, anything, whatever you want, you can read. I am not forcing you to go to editorial part and read just that. If you don't have the habit of reading, you should initially start with what interests you. You should start with your interests, and later on you can move on to things that you actually need for your exams, for your career. All right? Okay.
So to work on your reading ability, there अब तो अभी भी देर नहीं है क्योंकि एग्जाम्स डिले हो गए हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं. If you are targeting SSC CGL, then definitely work on your reading ability from now onwards. Just impart 15 minutes every day and you will see remarkable difference. Remarkable, because this is going to help you in reading comprehension. It is going to help you in close passage, parajumbles. It is going to help you in sentence rearrangement. It is also going to help you in sentence improvement. So see, so many multiple places wherein you would be benefited because of your one skill, that is a reading ability. Okay. All right. Okay, Abhishek, clear here. So that's great. Chaliye. So this is what you should be doing. Now, when you say farmers protesting against three agriculture reform laws and related issues, this is fine. This is something that I just gave you as an example. I don't want you to understand this, but I just quoted this as an example. Okay, this is reading ability. Next, I want you to know is types of questions asked in the reading comprehension section. In your reading comprehension section, number 1, you have vocabulary based questions. सीधा synonym antonyms पूछ लेते हैं या फिर कोई particular word की meaning पूछ लेते हैं from the passage. जो passage में दिया हुआ है उस word का meaning भी पूछ लेते हैं या उसका synonym और antonym पूछ सकते हैं. Theme based. Now this is important. देखो vocabulary याद रखना passage के context से related होती है. Never ever, for example, you know that the meaning of the word, for example, there's a word given here. It says, let's just assume a word. If I say a word having dual meaning, let me closely remember this word having dual meaning. Okay, as a catalyst. So catalyst can be used as noun, it can be used as verb also, right? So it depends how it has been used in the sentence. Accordingly, you have to pick your answer. Okay, sometimes there are words which have dual meaning. For example, if I say egregious, it used to give this meaning of extremely bad, but now it is something that's extremely good. So completely opposite meaning है. ठीक है, तो काफी बारी ऐसा होता है किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. यू शुड नो कि वर्ड कैसे सेंटेंस में यूज किया गया है. नाउ theme based, when it comes to theme based, we can have they can ask you about the heading, the title. They can ask you about the summary. They can ask you anything. Theme based can be like the entire context, जो उसका crux है passage का, उस पर based. Okay. Good morning नेहा, good morning. इन्फ्रेंस बेस्ड आता है, जैसे ट्रू और फॉल्स हो गया, ठीक है, या फिर नॉट गिवन और गिवन इन द पैसेज. सो नॉट स्टेटेड. ओके, what is true according to the writer, what is not true according to the writer. We can have this is inference based. Good morning Tarun. Then direct questions from the passage, that is fact based. Direct questions पूछ ले जाते हैं related to some numbers. Okay, some information given. Okay, some numbers, some information given. So आपको वो direct questions भी जो हैं पूछे जा सकते हैं from the passage. So these are the types of questions that you are being asked. These are the type of questions that you are being asked. Is it clear? Is it clear, all of you? Okay, Abhishek. All right. Great.
Now, what are the two approaches to decode an RC? अगर आपको कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है तो दो अप्रोचेस हैं, ठीक है? ओके तरुण, आशीष, ऑलराइट। तो दो अप्रोचेस हैं और मुझे पता है आप इन दोनों में से कोई एक अप्रोच तो जरूर से यूज करते हैं। देयर इज नो बिग डील, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता कि कैसे करना है, बट प्रैक्टिस प्लस अप्रोप्रिएट जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। आंसर देखो ये इसलिए इजी है क्योंकि आंसर आपको दिया हुआ है, वहां मेंशन्ड है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करना है। हिडन मीनिंग हो सकता है, आपको आंसर ढूंढना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? फर्स्ट अप्रोच इज PQ अप्रोच विच मीन्स पैसेज एंड क्वेश्चन अप्रोच। आप पहले पैसेज पढ़िए और फिर क्वेश्चंस को कीजिए, तो ये एक अप्रोच होती है। इस अप्रोच में क्या होता है, कुछ लोग जिनकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है, उनका प्लस पॉइंट है उनकी रीडिंग एबिलिटी, उनके लिए ये अप्रोच डिफिकल्ट नहीं होती है। दिस अप्रोच इज इजी फॉर देम। आप पैसेज पढ़िए, पूरा पैसेज मत पढ़िए, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ आप पढ़िए और फिर अब देखिए कोई क्वेश्चंस हैं जो इन पैराग्राफ में से हैं, देख लीजिए। अच्छा जी, अगर है तो आपको याद, देखो रीडिंग एबिलिटी में क्या होता है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, पर आपको ये याद रहेगा जी यस मैंने अभी ये पीछे आर्टिकल में पढ़ा, अभी मैंने किसी पैराग्राफ में ये पॉइंट पढ़ा है, सो आई कैन क्विकली गो बैक एंड फ्रॉम द पैसेज आई कैन डिराइव द आंसर। बट अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं कि मैंने अभी क्या पढ़ा, देन आपके लिए ये अप्रोच नहीं बनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि आप कोई चीज पढ़ते हैं, आप पढ़ते पढ़ते आगे आ जाते हैं, पीछे जो पढ़ा है वो आप सब भूल चुके होते हैं कि आपने अभी क्या पढ़ा। That is when it tells you that your reading ability is not strong, and if your reading ability is not strong, make sure that you do not go for passage question approach, ठीक है? पैराग्राफ क्वेश्चन अप्रोच सिर्फ वो लोग अटेम्प्ट करेंगे जिनकी रीडिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, ठीक है? सिर्फ वो लोग इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड अप्रोच जो है वो है क्वेश्चंस पैसेज, पैराग्राफ या क्वेश्चन पैसेज अप्रोच। पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चंस देख लीजिए या एक क्वेश्चन ही देख लीजिए, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको कोई चीजें याद रह सकती है तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पर जाइए। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, मतलब जो उस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे हैं, जो वर्ड्स उस क्वेश्चन को कंप्लीटली डिफाइन कर रहे हैं, आपको वो वर्ड्स वहां से पिक कर लेने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, when we will do a few questions, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप वो चीजें पिक कर सकते हैं। we will discuss it also, don't worry। कीवर्ड्स पिक कर लीजिए, साथ के साथ उसके आसपास। अब देखो, जैसे आपने कीवर्ड पिक किया, आपको आके पैराग्राफ पर या पैसेज में वो कीवर्ड जो है फाइंड करना है। फाइंड द कीवर्ड। कीवर्ड मिल जाएगा तो स्किम करिएगा फॉर्मर एंड लैटर पार्ट, मतलब आप पैराग्राफ में आपको कीवर्ड मिल गया, आप उसके पहले का और उसके बाद का फॉर्मर एंड लैटर पार्ट जो है आप क्या करेंगे, स्किम करेंगे, उसको रीड करेंगे। वंस यू गेट योर आंसर, एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस के लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे ही आपको आंसर मिलेगा, आप ऑप्शंस पे भी एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं। ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू एलिमिनेट द क्वेश्चंस, ठीक है? बताएंगे एनीबॉडी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? ओके, अभिषेक इज सेइंग ओके। तो आप एलिमिनेशन टेक्निक अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस में या व्हाट इज गिवन व्हाट इज नॉट गिवन, इसमें भी आपको एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी होगी। क्या अपनाना होगा, एलिमिनेशन टेक्निक ऑप्ट करनी होगी, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है? ओके नेहा, ऑलराइट, क्लियर है ये पॉइंट सबको? एनीबॉडी, नो कंफ्यूजन? तरुण सेज ग्रेट ग्रेट। तो गाइज ये 2 अप्रोचेस हैं। रीडिंग एबिलिटी यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है
तो PQ अप्रोच, रीडिंग एबिलिटी यदि स्ट्रांग नहीं है तो QP अप्रोच। दोनों लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, नो डाउट्स नो डाउट्स। तो भाई मुझे, मेरा काम आपको इतना ही बताना है, ये मैंने अभी बताया है, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। इम्प्लीमेंट करना भी मैं आपको आज सिखा दूंगी, और मंडे को हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके प्रैक्टिस करेंगे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो जरूर, लेकिन मंडे को सोलली हम प्रैक्टिस सेशन देंगे फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, चलिए, नो डाउट्स नो डाउट्स, बहुत बढ़िया। अगर डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, रीजनिंग एबिलिटी जिसकी वीक है वो इम्प्रूव कैसे कर सकता है? बेटा रीजनिंग एबिलिटी नहीं, मैं रीडिंग एबिलिटी कह रही हूँ। अभिषेक रीडिंग, अभिषेक मैंने बोला जिसकी रीडिंग एबिलिटी वीक है, बस आपको 15 मिनट रोज रीडिंग को देने हैं गाइस। देखो 15 मिनट रीडिंग को इस तरह देने हैं कि आप रीड करो, रीड वन पैराग्राफ, क्लोज योर आईज, ट्राई टू रिकॉल आपने क्या पढ़ा है। कोशिश कीजिए रिकॉल करने की आपने क्या पढ़ा, या किसी के साथ शेयर कीजिए, अच्छा मैंने आज ये आर्टिकल पढ़ा उसमें ऐसा ऐसा था, या मैंने आज एक किताब पढ़ी उसमें ऐसा ऐसा था। ट्राई टू रिकॉल थिंग्स व्हेंस यू रीड इट, ठीक है, वो चीजें, उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी क्या होती है, एनहांस होती है। इस एक्टिविटी से यू कैन एनहांस योर रीडिंग एबिलिटी मैक्सिमम इन 3 वीक्स। 3 वीक्स इसको करके देखिए, ट्राई टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर 3 वीक्स। आपकी रीडिंग एबिलिटी में रिमार्केबल चेंज आएगा गाइस, रिमार्केबल चेंज। डू इट, ओके। अभिषेक, आई होप आपका डाउट जो है मैंने एड्रेस कर दिया है, आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। ओके ओके अभिषेक, चलो बहुत बढ़िया। कुछ टिप्स जो हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ टिप्स बता रही हूँ। बेयर इन माइंड दैट नॉट ऑल क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सम आर डायरेक्ट एंड सम आर इन्फरेंस बेस्ड, सो डू नॉट गेट स्टक एंड लूज हो। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के किसी एक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं या फंस जाते हैं, और हम पैनिक करने लगते हैं या हम घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। सो डू नॉट वरी, सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट। सो आपको होप जो है अपनी लूज नहीं करनी, अपनी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना एग्जाम में। नंबर 2, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। ये तो मस्ट है, अगर रीडिंग एबिलिटी बढ़ानी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आसानी से करना है, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नीड नॉट क्रैम एवरी लाइन ऑफ द पैसेज, पैसेज की हर लाइन रटने की जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सिर्फ आपको कीवर्ड्स रटने चाहिए, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सारे सारे लाइंस या सब कुछ जो पैसेज में दिया है उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पैसेज में हर चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, Question should be answered using the text given in the passage. Do not assume anything. कुछ भी अपने मन से assume मत कीजिए, जो पैसेज में दिया है उसी के बेसिस पर आंसर करना है। ये मत सोचिए हमने तो वहां ऐसा पढ़ा था, चलो ये भी हो सकता है आंसर, जी नहीं। जो पैसेज में दिया, उन्होंने क्यों कहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड फ्रॉम द पैसेज एंड आंसर अकॉर्डिंगली, इसलिए क्योंकि उनको आंसर पैसेज से ही चाहिए। सो व्हाटएवर इज गिवन और मेंशन्ड इन द पैसेज, the answer should be given from there only. Okay, is it clear? All right, great, no doubt. अच्छा, आशीष ने तुरंत लिख दिया, is it clear? No doubt. Yes, pre-assumption कुछ करना ही नहीं। अगर आप प्रिजम्पशंस करोगे देन आप गलत करेंगे क्वेश्चन। सो कोई भी चीज को आपको पहले से जूम करके नहीं चलना है। ऑलराइट, ओके तरुण, ग्रेट, नाइस। अब एक पैसेज मैं आपके सामने रख रही हूं, पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है।
बताइएगा। अच्छा, आप लोग दोनों अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं क्वेश्चन पैसेज अप्रोच बताती हूँ, पैसेज क्वेश्चन। चलो पहले पैसेज क्वेश्चन, एक बार पैसेज क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप पढ़िए पैसेज। द सेल्स हु लिव्ड इन ब्रिटेन बिफोर द रोमन इन्वेजन, अपने मन में। चलो मैं 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट दे रही हूँ, ये तो 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गए। 2 मिनट्स टू रीड दिस। देखेंगे फिर इस पार्ट में से कोई क्वेश्चन है पैसेज में या नहीं, बताएं, फटाफट से रीड कर लेंगे। बेटा आशीष, ये एसएससी स्पेसिफिक है, तो एसएससी स्पेसिफिक चीजें ही मैं करा रही हूँ, ठीक है। बैंकिंग के लिए हम अलग से लेकर आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं एक अलग सेशन दूंगी, जिसमें कि मैं फॉर ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स आपको आरसीज करा दूंगी, ठीक है। ये एसएससी स्पेसिफिक है आशीष बेटा। चलिए, अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये 2 मिनट्स आर ओवर गाइस। इसको पढ़ने में इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कोई भी क्वेश्चन है जो इस इतने पार्ट से बनता है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। हमारा कीवर्ड क्या है, कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। और मिडेवल टाइम्स ये नहीं था वहां पर, छोड़ दीजिए। क्या था ये कुछ भी इससे रिलेटेड था, इस कीवर्ड से रिलेटेड नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ले इन द सेंटर ऑफ रोमन टाउन्स। सेंटर ऑफ रोमन टाउन्स में क्या था, बताओ। चलो कंप्लीट कंप्लीट सबने कर लिया, बहुत बढ़िया, फटाफट से बताओ। ओके, व्हाट अबाउट दिस सेंटर ऑफ रोमन टाउन्स, बताएंगे फटाफट से। यस तरुण, बिल्कुल करेक्ट है, मार्केट प्लेसेस। लास्ट पार्ट में दिया हुआ था मार्केट प्लेसेस, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग है आपको याद होगा, रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है आपको याद नहीं होगा। देखिएगा यहां दिया हुआ है, इन द सेंटर वॉज द फोरम और मार्केट प्लेस। ये रहा हमारा आंसर। यस आशीष, अभिषेक, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर हो गया। इसके अलावा क्या है, एट फर्स्ट द इन्वेडर्स अवॉइडेड लिविंग इन द टाउन। हु इज इन्वेडर्स, कौन है, अभी हमें नहीं पता इन्वेडर्स कौन है, क्योंकि इन्वेडर्स की बात नहीं हुई। व्हेन वाज साउथहैम्पटन फाउंडेड, हमें नहीं पता भाई। पैसेज मेनली किस बारे में बात करता है अभी देख लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टाउन्स, अर्ली लाइफ डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, इंक्रीज ऑफ ट्रेड, देखेंगे, ये देखते हैं। तो इसका मतलब आप पैसेज से क्वेश्चंस पे जाके भी आंसर कर सकते हैं अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग है। अब हम क्वेश्चन पैसेज कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, दूसरा पार्ट रीड करते हैं। रीड दिस पार्ट। एक जो है मैं आपको पैसेज क्वेश्चन से करा रही हूँ, एक और कॉम्प्रिहेंशन हम क्वेश्चन पैसेज से करेंगे, ठीक है। दोनों वेज, दोनों अप्रोचेस हम अप्लाई करके देख रहे हैं। चलो तरुण, आशीष, संजीव, अभिषेक बताएंगे फटाफट। इसको रीड कर लीजिए फिर आंसर देखिए। 2 मिनट्स, अगेन 2 मिनट दे रही हूं, फटाफट से। Done? Is the reading part done?
learners Tarun, Abhishek, Ashish. Yes, okay. Now let's see. आंसर्स मिल गए काफी सारे चीजों के. कैपिटल ऑफ इंग्लैंड अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, ये हम कर चुके हैं. इन्वेडर्स कौन है? सैक्सन्स, एंजल्स एंड जूट्स, ये यहां पर दिया हुआ है. इन्वेडर्स कौन है भाई? इन्वेडर्स का आंसर मिल चुका है, राइट? दैट्स वन. एम आई राइट और नॉट? क्विकली लेट मी नो जिनको कंफ्यूजन है. इन्वेडर्स, सैक्सन्स, एंजल्स एंड जूट्स है या नहीं? यस आशीष, दैट्स राइट. वन. नेहा बिल्कुल करेक्ट है. तरुण वेरी गुड. इसके अलावा साउथहैम्पटन वॉज फाउंडेड इन, व्हेन वॉज साउथहैम्पटन फाउंडेड? बताएं. वेरी गुड. नेहा, अभिषेक, तरुण, आशीष, वेरी गुड. व्हेन वॉज साउथहैम्पटन फाउंडेड? बताएंगे क्विकली. Yes, that's right. That's right, Ashish. In the 7th century. 7th century वहां पर लिखा हुआ था. 8th century में तो दूसरा था, बट 7th century में साउथहैम्पटन था. वेरी गुड अभिषेक, नेहा. यही हम देखना चाहते हैं कि आपको कितना याद रहता है. आपको पैसेज पे क्या वापस जाने की जरूरत पड़ती है या आप आंसर मार्क कर सकते हैं. दैट इज रीडिंग एबिलिटी. यस, एंड ऑफ 7th century, आशीष, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. ओके. पैसेज अभी तक आप देख रहे हो, हम किसकी बात करें? हिस्ट्री ऑफ टाउन्स की ही बात करें. कहीं पर भी हम अर्ली लाइफ, मार्केट की डेवलपमेंट, ट्रेड में बढ़ावा, ये सब नहीं देख रहे. देख लेंगे बट फिर भी एक बार और लास्ट पैसेज पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, ठीक है? अभी तक हम टाउन्स की ही बात करें कि टाउन्स कैसे बढ़े. नेक्स्ट अगेन 2 minutes अगेन मैं आपको दे रही हूँ, फटाफट से करेंगे एंड वील गो अहेड. वैसे आपको 1 minute लगना चाहिए. ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनमें आपको 1 minute, अब मैं आपको 1 minute दे रही हूँ, नॉट 2 minutes बट 1 minute. क्विकली रीड इट एंड लेट मी नो. 1 minute यू हैव. Is the reading part done? Is the reading part done, guys? Done. Okay, great, Tarun. So we have the answer. Capital of England during medieval times. क्या है बताओ? Capital of England during medieval times. Tarun, Abhishek, Ashish, Neha. Quickly let me know. Sanjeev. Neha says 2. That's right. That's right. Tarun, Neha, Abhishek. Winchester. That's correct. Absolutely right. Winchester. See, this is what happens. अभी आप देखो mentally you are settled, आप पीस में हैं. एग्जाम में क्या होता है? आप anxious होते हो, इसलिए आंसर नहीं मिलते. So don't be anxious. Be confident, trust your instincts and trust your reading ability. इसलिए reading ability पे काम करना शुरू कर दीजिए. 15 minute रोज spend on reading ability. It helps you a lot. Okay, अभिषेक, तरुण, नेहा, आशीष, संजीव. I hope that's making sense to all of you. बाकी लोग भी जो हमारे साथ जुड़े वो भी हमें कमेंट करके साथ साथ हेल्प आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं. इंदू इज देयर. हेलो इंदू. यू आर नॉट रेगुलर टू द सेशंस, यू शुड बी रेगुलर. इंदू. एक और क्वेश्चन इस पैसेज का रह गया है विच इज राइट हियर. द पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट व्हाट? हमने देख लिया. ट्रेड नो. डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स जी नहीं. अर्ली लाइफ नो. हिस्ट्री ऑफ टाउन्स यस, क्योंकि हम
टाउन्स के डेवलपमेंट की, टाउन्स थे नहीं थे, पहले थे फिर कैसे बने, उसकी बात कर रहे हैं. सो इट विल बी ऑप्शन 4, द हिस्ट्री ऑफ टाउन्स इन इंग्लैंड. It's better to first read questions. I observed this. Okay, okay, Tarun. बिल्कुल. So ये passage question approach था. आप question passage approach भी लगा कर एक बार देखेंगे. एक टाइप से मैंने आपको ये बता दिया. Second type से we'll be doing QP approach. Okay, which is right. Neha, option 4 is absolutely right. Abhishek, Tarun, very well said. That's option 4, history of towns, which is correct. Correct. That's right. अब जो नेक्स्ट पैसेज है उसको हम क्यूपी अप्रोच से करेंगे. क्वेश्चन पैसेज अप्रोच से वील बी अप्लाइंग क्यूपी अप्रोच. ओके, चलो. फर्स्ट, विच ऑफ दीज मेथड्स इज नॉट एडवोकेटेड इन द रिपब्लिक. सबसे बड़ा कीवर्ड, द रिपब्लिक में क्या चीज नहीं कही गई है. Differentiating children based on caste, imparting similar education to children, bringing up children under state guardianship, keeping children away from others. Not advocated. जाएंगे फटाफट से. So the Republic ये दिया है, ठीक है. In it, he advocates some rather extreme, removing children from their mother's care and raising them as wards of the state. सबसे पहले उन्होंने क्या एडवोकेट किया कि बच्चों को अपनी मम्मियों की केयर से हटा के आपको अलग से स्टेट के वार्ड्स में उनको बड़ा किया जाए. डिफरेंशिएटिंग चिल्ड्रन सूटेबल टू द वेरियस कास्ट, डिफरेंशिएट किया जाए जो कि वेरियस कास्ट के बच्चे हैं उनको. द हाईएस्ट रिसीविंग द मोस्ट एजुकेशन, जो सबसे हाईएस्ट उनको सबसे ज्यादा एजुकेशन. सो दे कैन एक्ट एज गार्डियन ऑफ सिटी एंड केयर फॉर द लेस एबल. अब देख लो फटाफट यहाँ पे. डिफरेंशिएटिंग चिल्ड्रन बेस्ड ऑन कास्ट ये दिया है. इम्पार्टिंग सिमिलर एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ये नहीं दिया है. उन्होंने कहा है जो हाईएस्ट है उनको ज्यादा अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए. तो हमारा आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि ये गलत है. इट इज नॉट गिवन. इट इज नॉट गिवन. तो अभी हमने क्या किया, बस कीवर्ड से हम चले गए पैसेज पे, हमने पढ़ा. So this is QP approach. What is this? This is QP approach. Yes, Ashish, your answer is right. Neha, Abhishek. It is option 2. Very well said. Tarun, option 2. बिल्कुल correct है. So हम relate कर पा रहे हैं, हम understand भी कर पा रहे हैं how this works for us. Right? Next. Aristotle believed that virtuous citizens should be produced by cultivating. Aristotle and virtuous citizens. फटाफट से इन कीवर्ड्स को हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे. इंदु, आशीष, ठीक है. अभिषेक कह रहे हैं देखो PQ बेटर है. तरुण कह रहे हैं QP. यही मैं आपसे कह रही हूँ गाइस, इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल एबिलिटी. इट इज इंडिविजुअलिटी दैट हेल्प्स यू. तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको QP चाहिए PQ, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. चलिए, एरिस्टोटल एंड वर्चुअस सिटीजन्स देखेंगे फटाफट से. अच्छा, एरिस्टोटल यहां दिया है, एरिस्टोटल, और देखो वर्चुअस सिटीजन्स. So Aristotle considered human nature, habit and reason to be equally important forces to be cultivated in education, the ultimate aim of which should be to produce good and virtuous citizens. Habit और reason, क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल, ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था. Isn't it? This was there in the options, right? Yes, it was. What is that? It is habit and reason. Ashish, fourth, not third. Ashish, fourth. Okay, so that's option 4. That's the correct answer. According to Aristotle, ये सब चीजें जरूरी होती है to produce or cultivate, a good and virtuous citizen. अच्छा, ऑप्शंस भूल गए, कोई बात नहीं, ऑप्शंस भूल गए थे तो 4th ऑप्शन. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आशीष. यस, जैसे भी करे आंसर करेक्ट आना चाहिए. बिल्कुल, यही जो है कॉन्सेप्ट है, यही आइडिया है. आप कोई भी अप्रोच लगाए, आंसर करेक्ट आना चाहिए. आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी. इंदु, ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेल डन. नेक्स्ट, व्हाट टूल डज एरिस्टोटल एडवोकेट टू टीचर्स
to develop good habits in students. Good habits in students और एरिस्टोटल ने बताई है कौन सी हैबिट, क्या तरीका है, देखो. He proposed teachers lead their students systematically and that repetition be used as a key to develop good habits. अच्छा, repetition use किया जाना चाहिए. Unlike Socrates' emphasis on questioning his listeners to bring out their own ideas, repetition be used as a key tool to develop habits. देखते हैं एक बारी. Is repetition given? Yes, repetition is given. Good habits develop करने के लिए repetition जरूरी है. Option 4. Ashish, that's right. Yes, that's right, Ashish. Option 4, repetition, which is absolutely correct. तरुण बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सबकी स्पेलिंग रेपिटेशन की गलत है. संजीव ने सही लिखा है रेपिटेशन. अभिषेक, दैट्स राइट, ऑप्शन 4. Neha, that's right. Great. So see, both the approaches work for us, whether it's QP or PQ, both the approaches work. All that matters is the correct answer. Okay, next. Children who are imparted highest education would be responsible for. So जिनके पास highest education है वो किस चीज के लिए responsible होंगे? Developing talent and skills, inculcating good habits, guarding the city, teaching the illiterate. Let's see the answer. Here we have already read the question. फटाफट से आंसर पर जाएं और पैसेज पर जाएंगे to locate our answer. Let's see. So yeah, highest education यहाँ पर था. The highest receiving the most education so that they could act as guardians of the city and care for the less able. अच्छा, वो सिटी के गार्जियंस हो जाएं और जो कि लेस एबल है उनकी मदद कर सके, तो जिनको सबसे ज्यादा एजुकेशन दी जाए. द हाईएस्ट रिसीविंग द मोस्ट एजुकेशन. देखेंगे क्या है हमारे पास ऑप्शन में. यस, गार्डिंग द सिटी. वेरी गुड आशीष, ऑप्शन 3, दैट्स राइट. गार्डिंग द सिटी which is absolutely correct. Tarun. अभिषेक, वेरी गुड. अभिषेक ने सबसे पहले आंसर पहले ही कर दिया, मैंने अब देखा है. इंदू, दैट्स राइट. नेहा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन 3, दैट्स गार्डिंग द सिटी. So learners, it's absolutely up to you. You want to go through the passage first, you can go. You want to go through the questions and you want to locate through keywords, it is up to you. आपके ऊपर निर्भर करता है. ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कैसे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने. संजीव, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन है. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. बताना है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. बताएंगे फटाफट. Socrates encouraged the listeners to come up with original ideas. The Republic was written around 360 AD. Socrates considered music and playing physical education as important aspects. Plato's method of education can be called extreme. देखेंगे फटाफट. 360 AD नहीं. रिपब्लिक 360 BC में गया था, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू. सो इट वॉज रिटन इन 360 BC, तो यही नॉट ट्रू है. रिपब्लिक वॉज रिटन, देखो यहाँ पर रिटन अराउंड इन 360 BC, नॉट 360 AD. तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. सी, इट इज ऑप्शन 2 बिकॉज इट वॉज रिटन इन BC एंड नॉट AD. यस, ऑप्शन 2 आशीष, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल. तरुण, अभिषेक, that's right. Your answers are correct. Option 2, because it is 360 AD, but it is given in the passage 360 BC. Right, Sanjeev? That's correct. So guys, true, not true, false, all these you can do through elimination. Okay.
एलिमिनेशन, आप इसको कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरह का लेवल और किस तरह का पैटर्न आपको पूछा जाता है क्वेश्चंस का। मंडे को आरसी के लिए हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे और एम्पल ऑफ क्वेश्चंस। आज जो हमने क्यूपी और पी की अप्रोच सीखा है, हमने जो ये अप्रोच सीखा है आज पीक्यू और क्यूपी अप्रोच, इसको हम मंडे को पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे मंडे को, ठीक है, सेशन में। चलिए लर्नर्स, सो द सेशन फॉर टुडे कम्स टू एन एंड राइट हियर लर्नर्स। I want all of you to ensure that you are safe, right? And keep on practicing, keep on learning, and keep on growing, learners. It makes difference and it is important also. Okay? Thank you so much for joining in, everyone. Thank you so much, learners, for joining in. Abhishek, you can go and have your college session. Ashish, thank you so much. You're welcome, guys. Thank you. Take care. Thank you so much.